नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। कोरोना का कहर कैसे थमेगा, कैसे शांत होगा ये कोहराम? देश कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। कई राज्यों में मई के महीने में भी लॉकडाउन है। कई राज्य कई बार लॉकडाउन को आगे बढ़ा चुके हैं, पर कोरोना पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से वैक्सीन की किल्लत। अगर बात पंजाब की करें तो यह वैक्सीन की कमी की वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स को बंद करना पड़ा। वैक्सीन के लिए मारामारी है। कैप्टन सरकार कभी केंद्र से गुहार लगाती है तो कभी वैक्सीन कंपनियों से, पर बात बन नहीं रही। और सवाल यह है कि बिना वैक्सीन के कोरोना से जंग कैसे जीतेंगे? लाखों मौतों का कारण बने इस अदृश्य दुश्मन को कैसे मातेंगे? पंजाब कोरोना महामारी के बीच कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ महामारी की मार तो दूसरी ओर वैक्सीन की भारी किल्लत, जिसका असर अब सूबे के वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में एक तरफ कोरोना का कहर डरा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन की किल्लत से ये डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। पंजाब में वैक्सीन नहीं होने से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां लिखा मिलता है कि वैक्सीन नहीं है। मोगा में भी वैक्सीन खत्म है। ਜਿਹੜੀ 45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਪਲਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਪਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਹਰ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, WhatsApp ਤੇ ਮੀਡੀਆ, सोशल मीडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ तो रहे हैं, लेकिन मायूस होकर वापस लौटने को मजबूर हैं। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 45 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 15/5 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਸ਼ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿੱਥੇ 18 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਜੀਤ ਜੀ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਟਾਫ ਅੰਦਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਏ ਆ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਚੱਲਿਆ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਏਗੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਆਏਗੀ ਕਦ नहीं आएगी। कुछ ऐसा ही हाल रोपड़ का भी है। यहाँ पर भी लोग वैक्सीन लगवाने के लिए कतारों में लगते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर को बिना वैक्सीन के ही घर लौटना पड़ रहा है। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਆਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ, ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ 200% ਓਨੈਸਟੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਟਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਬਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। कोरोना के कोहराम को खत्म करने के लिए वैक्सीन एकमात्र उपाय है, लेकिन वैक्सीन की पंजाब में भारी कमी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर असर पड़ रहा है। मोगा से दीपक सिंगला और रोपड़ से अवतार कंबोज, न्यूज़ 18। अमृतसर में लगातार चौथी बार वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। वैक्सीन के लिए मारामारी के बीच सेंटर्स पर लिखकर चस्पा दिया गया है कि यहां वैक्सीन नहीं है। गुरु नगरी अमृतसर में हालात बाकी जिलों से अलग नहीं है। यहाँ पर भी वैक्सीन को लेकर मारामारी है। लोग वैक्सीन का इंतजार करते करते थक चुके हैं। 18+ के लिए वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਾਨਵੀ ਹੈ। ਜਾਨਵੀ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ 1 ਵੀਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। 18+ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਕਸੀਨ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ 80 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਵਗੈरह, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ भी डर लग रहा है कि मतलब वैक्सीन लग जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। वैक्सीनेशन नहीं हो पाने से लोगों में नाराजगी है। जब वैक्सीन की कमी पर हेल्थ वर्कर से बात की गई तो उन्होंने अपनी मजबूरी बताया कि वो आला अधिकारियों तक लिखकर भेजते हैं, लेकिन पीछे से ही सप्लाई नहीं हो पा रही। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਡੋਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਪਈ? ਸਰ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਟਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਵੈਕਸਿਨ ਪਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ। अमृतसर के सिविल अस्पताल में लगातार चौथी बार वैक्सीन की कमी के कारण वैक्सीनेशन रोकना पड़ा। हर बार यहां दरवाजे पर चस्पा दिया जाता है कि वैक्सीन नहीं है। अमृतसर से अमित शर्मा, न्यूज़ 18। पंजाब को अब तक कितनी वैक्सीन मिली है और कितने लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, आंकड़ों के जरिए आपको बताते हैं वैक्सीन की पूरी सच्चाई। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अब तक पंजाब में किस रफ्तार से वैक्सीनेशन हुआ है। पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार, कुल वैक्सीनेशन 41,714, पहली डोज 34,74,682 को पहली डोज लग चुकी है, जबकि 7,02,332 लोगों को दूसरी डोज भी लगी है। अब आपको बताते हैं वैक्सीनेशन के टॉप 5 जिले कौन से हैं। इनमें लुधियाना सबसे ऊपर है, जहां 6,25,763 लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। जालंधर, जहां 4,54,007 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। गुरदासपुर 3,53,034 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, जबकि मोहाली जिले में 3,42,467 लोगों को वैक्सीन लगी है।
होशियारपुर 3,26,505 लोगों को वैक्सीन लग पाई है। अब आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि किस वर्ग को कितनी डोज मिली है। 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को 12,59,511 लोग 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं जिनको डोज लगी है, जबकि 15,11,548 45 से 60 साल के बीच की उम्र के हैं। 4,86,903 30 से 45 साल के बीच के लोग जिनको ये डोज लगी है। 18 से 30 साल के 2,21,275 लोगों को डोज लगी है। पंजाब को अब तक कितनी वैक्सीन मिली है? पंजाब को कोविशील्ड की 42,48,560 डोज मिली है, जबकि कोवैक्सीन की 4,09,080। अगर इन दोनों को जोड़ा जाए तो 46,57,640 वैक्सीन की डोज अब तक पंजाब को मिल चुकी हैं। अब जान लेते हैं कि पंजाब के किन 5 जिलों में सबसे कम वैक्सीनेशन हुआ है। इनमें सबसे ऊपर है फतेहगढ़ साहिब, जहां 56,156 डोज ही लग पाई हैं। मानसा में 59,429 डोज लगी हैं, जबकि बरनाला में 63,072 डोज लगी हैं। रूपनगर में 71,626 डोज लगी हैं। श्री मुक्तसर साहिब में 85,560 डोज लग पाई हैं। अब तारीख दर तारीख आपको बताते हैं पंजाब में वैक्सीनेशन किस तरीके से हुआ। 10 मई तक 69,494 डोज लगी। 11 मई को ये बढ़कर 82,688 हो गई, जबकि 12 मई को 50,945 को डोज लगी। 13 मई को आंकड़ा 41,757 हो गया और 14 मई को 33,716 तक पहुंच गया। इन आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंजाब में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। हालांकि पंजाब सरकार वैक्सीन की कमी को दूर करने के प्रयास भी कर रही है, जिससे कि उम्मीद है कि प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों में वैक्सीन की कमी दूर हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पंजाब सरकार के सामने कोरोना से निपटने की एक बड़ी चुनौती है। उससे भी बड़ी चुनौती वैक्सीन की कमी दूर करना। हालांकि सरकार भरसक कोशिश कर रही है कि कैसे भी वैक्सीन जल्द मिले। सरकार विदेशों से वैक्सीन खरीदने पर जोर शोर से काम कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर ने भारत में जमकर तबाही मचाई। अभी भी मौत का तांडव यहाँ पर जारी है। कोरोना वायरस से जंग जारी है, लेकिन कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन ब्रह्मास्त्र है। पर ये ब्रह्मास्त्र है कहाँ? देश में करीब करीब हर जगह वैक्सीन की भारी कमी है। सरकार 2 स्वदेशी वैक्सीन के अलावा रूस की वैक्सीन की मदद ले रही है, लेकिन आबादी को देखते हुए ये भी नाकाफी है। देश के सबसे बड़े अस्पताल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि अगले 2 महीनों में देश में वैक्सीन की काफी डोज उपलब्ध होगी। Vaccines will be available in large amount probably in about 2 months' time, because the companies which are making vaccines will start opening up their manufacturing plants. There will be more vaccine doses available. From outside also we will get vaccine. So both the Covishield, Covaxin and Sputnik vaccine would be manufactured in India by more and more manufacturing plants. Sputnik is tied up with number of companies in India to manufacture the vaccine. New plants are being set up both by Bharat Biotech and Serum Institute. And by July, August, we will have a large number of doses available. उधर पंजाब की कैप्टन सरकार ने भी अब वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए ग्लोबल सोर्सिंग के लिए कोवैक्स फैसिलिटी अलायंस में शामिल होने का फैसला लिया है। ऐसा करने वाला पंजाब देश का पहला राज्य बन गया है। कई अन्य राज्य वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कब जाकर देश में वैक्सीन की कमी पूरी हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
कोरोना की चेन तोड़ने के लिए कई राज्यों ने लॉकडाउन का सहारा लिया। पंजाब में भी मिनी लॉकडाउन है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि क्या इस लॉकडाउन से रोक पाए कोरोना की रफ्तार। देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर थमने को लेकर कुछ अच्छे संकेत मिल रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगाए गए लॉकडाउन व अन्य कदमों का भी असर दिखने लगा है। सरकार के मुताबिक महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और तेलंगाना उन 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल है जहां कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन का फायदा बताया और इसके लिए पुणे का उदाहरण दिया। मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी ने कहा कि सख्त कंटेनमेंट का फायदा होता है। अगर पुणे को देखें तो मार्च में वहां केस पॉजिटिविटी रेट 69.7% थी, जो अब घटकर 23% पर आ गई है। पंजाब में भी लॉकडाउन लगा दिया गया। राज्य में 15 मई तक मिनी लॉकडाउन रहेगा। ये फैसला कोविड के बढ़ते मामलों के कारण लिया गया है। मिनी लॉकडाउन में राज्य में कई नई पाबंदियां लगा दी गई हैं, लेकिन मिनी लॉकडाउन से क्या कोरोना की रफ्तार कम हुई, आंकड़ों के जरिए जानते हैं। पंजाब में 3 मई को 6,772 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 7 मई को ये आंकड़ा 8,000 के पार पहुंच गया। 10 मई को 8,549 नए केस सामने आए तो 12 मई को 8,271 नए केस दर्ज किए गए। वहीं मौतों की बात की जाए तो पंजाब में 3 मई को 155 लोगों की कोरोना से जान गई थी। 7 मई को ये आंकड़ा 165 पर पहुंचा। 10 मई को 198 मरीज कोरोना की भेंट चढ़ गए। 12 मई को ये आंकड़ा 193 पर रहा। अगर इस आंकड़े के आधार पर देखें तो मिनी लॉकडाउन से कोरोना पर काबू तो नहीं पाया जा सका, लेकिन हालात बद से बदतर हो सकते थे अगर ये पाबंदियां नहीं होती, क्योंकि सख्ती के बावजूद कोरोना को रोक पाना कितना मुश्किल है ये आंकड़े बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल जैसे राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का पीक जा चुका है, जबकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में मई के आखिर तक पीक आ सकता है। सख्ती के बावजूद यहां अभी भी कोरोना को काबू नहीं किया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।